Good morning, students. In our last class, we have studied about whole numbers and representation of whole numbers on number line. How do we add them on number line, subtract them, multiply them, or divide them on number line? Today, we will discuss some properties of whole numbers and solve some question based on our last video, right? So, properties of whole numbers. First is commutative property. Meaning of commutative is when you change the order and what will be the result. So for addition and multiplication whole numbers are commutative. Why? क्योंकि like जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ 6 + 7 gives you 13. If you change the order 7 + 6 again the result remain same. And similarly for multiplication 3 into 6, 3 6 ja 18 or 6 3 ja also 18. It means after changing the order, if the result will remain same, it means they are commutative. Who? Addition and multiplication are commutative for whole numbers. But this is not true for subtraction and addition because 5 minus 3 gives you 2. If you change the order 3 minus 5, it will give you a different integer, different number, -2, right? If you are dividing 10 divided by 5, it will give you 2. But if you divide 5 divided by 10, it will give you 0.5, right? So answers are not equal. So commutative property does not hold for subtraction and division. Addition and multiplication are commutative for whole numbers. Next is our associative property. For any whole number, for any whole numbers a, b and c, the sum and product of three numbers remains the same irrespective of the order. The meaning of this sentence is like तीन नंबर हमने लिए हैं whole number a, b और c, right? Here I am writing a plus b in the bracket plus c. It means a और b को आप पहले ऐड करोगे और फिर आप c को ऐड करोगे. Or if I am writing a plus b plus c in a bracket, it means add b plus c first and then add a. The result will remain same. Like I am taking an example. A की जगह मैंने एक नंबर ले लिया 3, बी की जगह एक नंबर ले लिया होल नंबर 4 और सी की जगह एक होल नंबर ले लिया से 6, राइट? सो इट मीन्स 3 + 4 7 + 6 gives you 13. और इफ आई एम राइटिंग 3 + 4 + 6, बी और सी को पहले ऐड करना है, ए को बाद में. 4 + 6 10 + 3 10 + 3 gives you 13. The result is still the same. It means they are associative. Who? Addition and multiplication. Multiplication का भी यही है. Like I am multiplying, say a की जगह आपने 3 लिया, b की जगह आपने 2 लिया और c की जगह से आपने 5 लिया. 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, right? और if I am writing 3 into 2 into 5, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30. अगर हमने ऑर्डर को चेंज किया है तभी भी आंसर हमारा सेम ही आ रहा है, राइट? मतलब अगर ग्रुपिंग हम चेंज कर रहे हैं, पहले हमने 2 अलग डिजिट्स को ऐड किया था और फिर थर्ड डिजिट को ऐड किया था, और यहाँ पर हमने 2 अलग नंबर्स को ऐड किया फिर फर्स्ट वाले को ऐड किया. यानी अगर हम ग्रुपिंग को भी चेंज करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, बट आंसर क्या आता है? सेम. इट मीन्स दे आर एसोसिएटिव. Yes, but it does not hold for subtraction and division. सेम एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ऑर्डर चेंज करने से आंसर सेम नहीं आते. दे आर नॉट एसोसिएटिव. थर्ड इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फॉर होल नंबर्स a, b and c, multiplication distributes over addition and subtraction. क्या मीनिंग है इसका? Like a is going to multiply with a bracket
and in the bracket two whole numbers are going to be added. तो आप क्या कर सकते हो, a को पहले b से मल्टीप्लाई करोगे, a इंटू बी, फिर जो साइन लगा हुआ है प्लस का तो प्लस का साइन आएगा, माइनस का तो माइनस का साइन आएगा, देन यू मल्टीप्लाई ए बाय सी, राइट. तो दिस इज multiplication distribution over addition, and this is multiplication distribution over subtraction. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, लाइक इफ आई एम राइटिंग से ए की जगह आपने ले लिया 2, बी प्लस सी की जगह आपने ले लिया 4 प्लस से 3, राइट. तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, 4 प्लस 3 इज 7, 7 2 जा 14, 14 आंसर आना चाहिए. और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें तो 2 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 4 फर्स्ट, बीच में एडिशन का साइन है, देन 2 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 3, राइट. 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 8 प्लस 6 इज अगेन गिव्स यू आंसर 14. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, राइट. अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता 4 माइनस 3 तो हम यहाँ भी माइनस का साइन कम में लेते हैं, राइट. Now we will solve some questions based on a last video, and today I will send you one worksheet also. Solve that worksheet and send it back to me on my WhatsApp number, right. Write the successor of 9888. सक्सेसर क्या होता है, जस्ट एक आगे वाला नंबर, ठीक है. फॉर फाइंडिंग द सक्सेसर वी हैव टू ऐड 1. सो सक्सेसर of 9888 will be 9888 plus 1. अब 1 ऐड करने से हम एग्जैक्टली नेक्स्ट नंबर पे जंप कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं. जब आप 1 ऐड करेंगे तो यूनिट वंस डिजिट में ऐड होगी, 8 प्लस 1 9, और बाकी के डिजिट्स एज इट इज आ जाएंगे. चिल्ड्रन यू कैन ऐड राइट इजीली हियर 9889. So 9889 is the answer. Next question. Write the predecessor of 20397. For finding the predecessor, we have to subtract 1. Predecessor of 20397. For finding this, we have to subtract 1. क्या करेंगे हम, 1 को subtract कर देंगे. 7 minus 1 6, 9 3 0 2. So 20396 is the answer, right. Now come to question number 3. Write successor and predecessor of the smallest 4-digit number. Here no number is given, but a hint is given that that number will be smallest 4-digit number. Which will be the smallest 4-digit number? Yes, smallest 4-digit number will be 1000. 1000. 1000 is the smallest 4-digit number. Now successor of 1000 will be, add 1, 1001. And for finding the predecessor, of 1000, we have to subtract 1. So 999, right. Now come to question number 4. Write 3 consecutive numbers after 1998. Yes children, what are consecutive numbers? Consecutive का मतलब होता है लगातार. जैसे इफ आई एम सेइंग राइट 3 consecutive numbers after 2, तो 2 के जस्ट बाद कौन आता है, 3 4 5. these are the answers. तो consecutive number 1998 के जस्ट बाद यानी आपको 1 1 ऐड करते जाना है. those 3 numbers will be 1999. नेक्स्ट नंबर विल बी प्लस 1 करोगे तो आप क्या आएगा, 2000.
और उससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2001। अंडरस्टैंड। 1998 में जब आपने +1 किया तो 1999 आया, फिर +1 किया तो 2000 आया, फिर +1 किया तो 2001 आया. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड continuous 3 predecessors of these number, this number 1998 के 3 predecessors हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि कंटिन्यू हो, लगातार हो. राइट. फाइंड हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 and 120. राइट. वी हैव टू फाइंड टोटल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 80 and 120. जब आपको दो नंबर्स के बीच के नंबर्स, एकदम बीच के नंबर्स काउंट करने हैं, जिसमें हमें 80 को काउंट नहीं करना है और 120 को काउंट नहीं करना है, यानी दोनों एंड्स को हमें काउंट नहीं करना है, तो व्हाट विल बी आवर फॉर्मूला. जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो. 120 माइनस 40, 80 इज 40. और क्योंकि हम दोनों एंड्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हमें इन दोनों के बिटवीन के नंबर्स चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट 1 मोर. राइट. तो 40 माइनस 1 इज 39. ओके. which will be on the right of the other on the number line among 6887 and 8667. Now we are talking about number line. अब आप 6000 के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करने अगर बैठेंगे तो वो तो ड्रॉ होना पॉसिबल नहीं है पेज पे. लेकिन ये चीज़ हमें पता है कि नंबर लाइन में सबसे पहला 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है एंड सो ऑन. राइट. इट मीन्स राइट साइड पर नंबर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, यानी राइट वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है. तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही राइट साइड पर होगा. सो 6887 is greater or 8667 is greater? Of course, we will compare the first digit because both are of 4 digits. So 6 से बड़ा है 8. It means 8667 is greater than 6887. So जो नंबर ग्रेटर होगा वही राइट साइड पे होगा. तो 8667 is on the right side of 6887. Right? Now, question number 7, represent on number line. Shouldn't we have already discussed it in our last video? But now, again, I am doing one question on 4 addition, subtraction, multiplication, and division, all 4 operations. First, add 9 plus 3. It means we have to do the addition on number line. Addition के लिए क्या बताया था मैंने आपको, पहले फर्स्ट वाले डिजिट पे पहुँचते हैं. ठीक है. और फॉर एडिशन वी मूव टुवर्ड्स राइट साइड. उसके बाद हमें कितने और काउंट करने हैं, 3. 9 के बाद 1 2 3 एंड द डायरेक्शन इज राइट साइड एंड आवर आंसर इज 12. सो 9 plus 3 is equals to 12. Sorry. Right. Now B part. 11 minus 4. For subtraction we move towards left side. स्टार्टिंग फ्रॉम 11 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे. और कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 4. काउंट 4. 1 2 3 4 एंड द डायरेक्शन इज लेफ्ट साइड एंड आवर आंसर इज 7. सो 11 minus 4 is 7. नेक्स्ट 5 into 2. 5 into 2. मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप पूरे 5 डिजिट्स का एक ब्रैकेट बनाएंगे और हमें कितने ब्रैकेट लेने हैं वो चीज़ हमें ये वाला नंबर बताएगा कि हमें दो पैसेज बनाने हैं 5 डिजिट्स के. तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 एक पैसेज ये बना एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. और एक और पैसेज आप बनाएंगे 5 डिजिट का, तो 1 2 3 4 5 दूसरा पैसेज ये बना. राइट. एंड व्हाट इज द आंसर, 10. 5 2 जा 10. राइट. नेक्स्ट इज डिवीजन. 9 डिवाइडेड बाय 3. डिवीजन भी सब्ट्रैक्शन की तरह ही शुरू करते हैं. इस वाले डिजिट पे जंप करेंगे सीधा और डिवीजन में हम कौन सी साइड मूव करेंगे, लेफ्ट साइड. तो 3 3 के हमें पैसेज बनाने हैं और
जंप करते जाना जब तक हमें 0 नहीं मिलता है। तो 1 2 3, 1 2 3, 6 पर आया, फिर 1 2 3, 3 पर आया, फिर 1 2 3, 0 पे आ गए। कितने पैसेज बने? 1 2 एंड 3। सो आंसर इज 3. Count these number of passages, 1 2 and 3, and this is the answer. 9 divided by 3 is 3.